Good morning, students. Today we will study about chapter number 6 in mathematics, fractional numbers. Fractional numbers. We can define fractional numbers as a division of objects in several parts. So we start. Tom bought a pizza. He shared it with his three friends. They were 1 plus 3 equals to 4 in number. Tom is a boy. He bought a pizza and he has three friends. So, total number of people are here 4. Tom put the plate on a table. Tom put the plate on a table, took a knife and cut the pizza into 4 equal parts. Why he cut pizza into 4 equal parts? Because there were 4 people. So they took 1 equal part each. तो क्या किया टॉम और उसके फ्रेंड्स ने? हर एक जने ने पिज़्ज़ा का एक एक इक्वल स्लाइस उठा लिया. When we divide one thing into 4 equal parts, we say each part as 1 by 4 and write it as 1 by 4. 1 divide 4. क्या कह रहा है यहाँ पे? When we divide one thing into 4 equal parts, here is 1 pizza and Tom divided it into 4 equal parts. So how can we say it? 1 by 4. 1 by 4 and write it as 1 divided by 4. 1 by 4 is also called quarter. So what we can call 1 by 4 as a quarter. Next, fraction. फ्रैक्शन क्या होता है? अब हम ये पढ़ेंगे. अ पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स is called a fraction. A part of a whole object or collection of objects is called fraction. What is fraction? A part of whole object. One slice of pizza is called fraction. One part of a whole object is called fraction. When an object is divided into 2 equal parts, then each part is called 1 half of the whole, written as 1 by 2, 1 divided by 2. When an object is divided into 2 equal parts, okay, we take this pizza. Here Tom has divided it into 4 equal parts. Now we have to divide it into 2 equal parts. 2 equal parts. So how can we write it? 1 by 2. When an object is divided into 3 equal parts, each part is called 1/3 of the whole, written as 1 divided by 3. जैसे हमने पिज़्ज़ा के 4 इक्वल पार्ट्स किए थे और हमने उसको 1 डिवाइड बाय 4 से डिनोट किया था, वैसे ही हमने किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमने उसको कैसे डिनोट किया था? 1 by 2. अब हमको किसी एक ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में, तो हम कैसे डिनोट करेंगे? 1 डिवाइड बाय 3. Now we will talk about numerators and denominators. What are numerator and what are denominators? The number of equal parts a whole is divided into called denominator. Number of equal parts. Number of equal parts a whole is divided into is called denominator. हमने एक ऑब्जेक्ट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, उस डिजिट को, उस नंबर को, इक्वल पार्ट्स के नंबर को हम डिनोमिनेटर कहेंगे. डिनोमिनेटर जो नीचे की तरफ आता है, जस्ट लाइक 3. 3 is denominator, 2 is denominator, here 4 is denominator. The number of equal parts taken is called numerator. What is numerator? Number of equal parts taken from. इक्वल पार्ट्स जो थे, इक्वल पीसेस थे, वो किस में से लिया गया है, कितने में से लिया गया है, उसे हम नॉमिनेटर बोलेंगे. यानी 4 पार्ट्स जो पिज़्ज़ा के थे वो किस में से लिए गए? 1 पिज़्ज़ा में से लिए गए. तो 1 इज़ न्यूमरेटर एंड 4 इज़ डिनोमिनेटर. वी रीड इट एज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर द होल ऑब्जेक्ट and denominator is equal parts. Next, look at this table. Figure. Here is a figure of rectangle.
डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, फ्रैक्शन शेडेड, फ्रैक्शन अनशेडेड. So here is a rectangle with no fraction shaded. What is the numerator? What will be the numerator? One whole, because there is no equal parts in it. It is a whole object. ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है, इसका कोई डिवीज़न नहीं हो रखा है, इसलिए ये इसका जो न्यूमरेटर रहेगा वो वन होल रहेगा, यानी वन. नेक्स्ट फिगर. अब जो ये रेक्टेंगल है इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो डिनोमिनेटर क्या रह जाएगा? टू इक्वल पार्ट्स, यानी जो डिनोमिनेटर आएगा वो टू आएगा. हमने यही तो सीखा है कि कितने पार्ट्स में हमने उसे डिवाइड किया है एक ऑब्जेक्ट को, वो नीचे आएगा, यानी डिनोमिनेटर की जगह पे आएगा. तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के टू इक्वल पार्ट्स हुए हैं, यानी टू डिनोमिनेटर होगा. टू डिनोमिनेटर हुआ, और कितने ऑब्जेक्ट में से इस डिवीज़न हुआ है? कितना ऑब्जेक्ट में से? ऑफ कोर्स वन ऑब्जेक्ट ही है जिसके टू इक्वल पार्ट्स हुए, तो नोमिनेटर क्या होगा? न्यूमरेटर वन पार्ट. फ्रैक्शन शेडेड यानी इसमें कितने पार्ट में फ्रैक्शन किया हुआ है? वन पार्ट में फ्रैक्शन किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 यानी वन हाफ. फ्रैक्शन अनशेडेड, कितने फ्रैक्शन अनशेडेड है? वन फ्रैक्शन, ऊपर वाला ये क्या है? अनशेडेड है, तो ये कैसे डिनोट होगा? 1/2, वन हाफ कहते हैं हम इसे. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, थ्री इक्वल पार्ट्स. अब देख रहे हैं इस एक रेक्टेंगल के क्या हो गए हैं? थ्री इक्वल पार्ट्स हो गए हैं. 1, 2 एंड 3 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं. तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 3 और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 2. फ्रैक्शन शेडेड, फ्रैक्शन कितने फ्रैक्शन शेड किए गए हैं? 1 और 2 फ्रैक्शन आर शेडेड फ्रॉम 3 फ्रैक्शन, तो इधर क्या हो जाएगा? 2/3. फ्रैक्शन अनशेडेड, अब फ्रैक्शन कितना फ्रैक्शन अनशेडेड है? 1 फ्रैक्शन अनशेडेड है, 1/3. नेक्स्ट, हियर इज अ पिक्चर ऑफ रेक्टेंगल इन विच 4 फ्रैक्शंस आर हियर. 4 फ्रैक्शंस दे रखे हैं, यानी ये रेक्टेंगल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, तो 4 डिनोमिनेटर हो जाएगा और 3 न्यूमरेटर हो जाएगा. फ्रैक्शन शेडेड, कितने फ्रैक्शन शेड किए गए हैं? 1, 2, 3 फ्रैक्शन आर शेडेड बाय 4. नेक्स्ट, फ्रैक्शन अनशेडेड, कितना फ्रैक्शन अनशेड है? 1 फ्रैक्शन अनशेड है, कितने में से? 4 में से, तो क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4. नेक्स्ट, इसमें कितने पार्ट्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. हियर आर 6 फ्रैक्शंस. डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 5, बिकॉज 5 आर शेडेड. न्यूमरेटर 4. फ्रैक्शन शेडेड क्या हो जाएगा? 4/5. Students, in this pic, one fraction is extra, so just ignore this fraction. So, fraction shaded हो जाएगा 4/5, fraction unshaded 1/5. How can we say it? 1/5. Similarly, here it is 6 equal parts, so denominator is 6. 5 parts are shaded, so numerator is 5. We can say fraction shaded part as 5/6. 5 are shaded from 6, so 5/6 are fraction shaded and 1/6 are fraction unshaded. Similarly, you have to discuss these two figure. Next, take the figure that are divided into equal parts. इक्वल पार्ट्स में जो फिगर है उनको आपको टिक करेक्ट करना है. लुक इन दिस पिक्चर. यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स है. 1, 2, 3, 4. आप देख सकते हैं ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है. सो यू हैव टू टिक करेक्ट ऑन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में इक्वल पार्ट्स नहीं है, आप देख सकते हैं. इस पिक्चर में इक्वल पार्ट्स नहीं है, तो इस पर टिक नहीं करना है. ऐसे ही आपको इक्वल पार्ट्स पे टिक करना है, और जो इक्वल नहीं है उस पर रॉन्ग का साइन करना है. सेकंड क्वेश्चन,
शेड अ पार्ट ऑफ ईच होल टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शंस। आपको इन क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट में पार्ट शेड करना है। 1/4, 1/4 यानी 4 इसके डिवीज़न हो रखे हैं, इसमें से आपको जो 1 पार्ट है उसको शेड करना है। इनमें से आप किसी भी एक पार्ट को शेड करेंगे लाइक दिस। विथ योर पेंसिल यू हैव टू शेड 1 पार्ट। नेक्स्ट 3/4, 3/4, 4 parts are given here, you have to shade 3 parts like this, you have to do with your pencil. Next, here are given 6 equal parts, you have to shade 5 parts. Next 1/4, you have to shade 1 part. Here are 3/4, you have to shade 3 parts. Similarly, next question. For each of the following figures, write the fraction showing shaded parts. जो फ्रैक्शन दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 फ्रैक्शंस दे रखे हैं, उनमें से जो शेडेड पार्ट्स है उनको शो करना है। तो जो शेडेड पार्ट है वो हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, और जो टोटल डिवाइडेड पार्ट्स है वो हो जाएंगे आपके डिनोमिनेटर। तो 2/6। सिमिलरली हियर 4 parts are shaded, 4 is your numerator and 8 is given part, so 8 is your denominator. Similarly here 1 2 3 4 5 parts are shaded, so you have to write here 5 as your numerator and total divided parts here as denominator. Here are 3 parts are shaded, so you have to write 3 as the numerator and 4 as the denominator. Rest 2 question you have to do with yourself. Fraction of a collections. When we divide a collection of things into 2 or more equal groups, we call each group as 1/2, 1/3, 1/4. जब हम किसी भी थिंग्स के कलेक्शन को 2 या उससे भी मोर इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हम उन्हें कैसे डिनोट करेंगे? वो जो एक के ग्रुप होगा वो हर ग्रुप को हम कैसे डिनोट करेंगे? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, so on. For example, 1/2 of a collection of 8 fish is shown here. 4 fish out of 8 fish is 1/2 of the collection. So here are total 12 bananas. 12 bananas. 4 2s are 8, 4 3s are 12 bananas. Now 1/3 of 12, 1/3 of 12 कितने फ्रैक्शन ग्रुप है इसके अंदर? तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे 1/3 of 12। 3 की टेबल कितनी बार आती है? 3 की टेबल कितनी बार काउंट करेंगे कि 12 आ जाएगा? 3 4s are 12। तो इधर कितने हैं? 4। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 4 ग्रुप्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 ग्रुप्स दे रखे हैं 5 फ्लावर से मिलकर 1 2 3 4 5 फ्लावर से मिलकर एक ग्रुप दे रखा है। तो फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा? 1/4। 1/4, 4 कितने हैं ग्रुप से? तो 1/4 of 20। तो एक ग्रुप में आपको पता करना हो कि कितने फ्लावर्स है, तो आप कैसे करोगे? 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है? 4 5s are 20। तो 1 ग्रुप में कितने फ्लावर्स है? 5 फ्लावर्स है। Fractions can also be formed by taking any number of things from a group. For example, taking 3 flower out of a group of 8 flower forms a fraction 3/8 of the whole group. एक फ्लावर्स का ग्रुप दे रखा हो, 8 फ्लावर्स का एक ग्रुप है, अब आपने उसमें से 3 फ्लावर्स को निकाल दिया, तो अब वो फ्रैक्शन क्या बनेगा 3 फ्लावर का? 3/8, बिकॉज 8 इज़ अ होल नंबर ऑफ फ्लावर, होल ग्रुप ऑफ फ्लावर, एंड उसमें से आपने 3 फ्लावर्स को बाहर निकाल दिया, तो कैसा बनेगा? 3/8
8 ये फ्रैक्शन बनेगा। Like fractions. Now we will discuss about like fraction. What are like fractions? Like fraction are fraction with the same denominator. वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 सबके डिनोमिनेटर में क्या है 6 आ रखे हैं। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। 6/6 इज कंप्लीट होल। 6/6 जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपका सेम हो जाता है तो क्या बन जाता है ये कंप्लीट होल यानी कंप्लीट ग्रुप बन जाता है। 6/6 is a fraction when we take all the equal parts made. 6/6 फ्रैक्शन कब बनता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट का किसी ग्रुप के जो इक्वल पार्ट्स होते हैं उनको एक साथ ले लेते हैं तो वो क्या बनता है 6/6। सिमिलरली 7/7 भी हो सकता है, 8/8 भी हो सकता है। सिमिलरली ईच ऑफ द फ्रैक्शन 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 7/7 ये सब क्या है इक्वल पार्ट्स जो थे ग्रुप के वो है। अनलाइक फ्रैक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। लाइक फ्रैक्शन में तो डिनोमिनेटर सबके सेम थे, अनलाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सब लाइक 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इन सब में आप देख सकते हैं कि सबका डिनोमिनेटर्स अलग है। सिमिलरली 3/4, 5/6, 6/7 आर अनलाइक फ्रैक्शंस। Next we will move on exercise. Solve the fraction as asked. Here are picture of cups. Now question given is 1/3 of 12. 1/3 of 12. Here are 12 cups. So 3 4s are 12. 3 4s are 12. So 4 is the answer. Now here are the picture of whistles. So 1/5 of 20. 5 4s are 20. Ignore this 5 and write correct answer 4. 5 4s are 20. 5 4s are 20. Next question. Write the fraction for the shaded part of the group. Write the fraction for the shaded part of the group. यहाँ पर कितने shaded part है 2 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 में से 2 ट्राइंगल्स शेडेड है तो 2 एज अ न्यूमरेटर एंड 5 एज अ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 हियर आर 7 स्क्वायर्स। उनमें से 7 में से 3 आर शेडेड तो 3 योर न्यूमरेटर एंड 7 इज योर डिनोमिनेटर। नेक्स्ट यू हैव टू डू विथ योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल द फ्रैक्शन दैट आर लाइक फ्रैक्शन टू द फर्स्ट वन। लाइक फ्रैक्शन आपको बता रखा है जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। क्वेश्चन 3/5। सो आपको कौन से फ्रैक्शन पे सर्कल करना है जिसका डिनोमिनेटर 5 हो लाइक दिस 4/7 जिसके भी डिनोमिनेटर 7 होंगे वो लाइक फ्रैक्शन होंगे आपको सर्कल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आर कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग लाइक फ्रैक्शन। कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। आपने कंपेयरिंग ऑर्डर पढ़े ही होंगे पहले, ग्रेटर देन, लेसर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ये सब होते हैं कंपेयरिंग। तो अब आपको फ्रैक्शन में कंपेयर करना है और उनके ऑर्डर अरेंज करने हैं। लुक एट द शेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट स्ट्रिप में कितने दे रखे हैं रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 पार्ट्स दे रखे हैं। उसमें से शेडेड कितना है 1 तो 1 एज योर न्यूमरेटर एंड 5 एज डिनोमिनेटर। नेक्स्ट सेकंड में 2 पार्ट्स आर शेडेड 2/5। नेक्स्ट 3 पार्ट आर शेडेड 3/5। जो टोटल पार्ट्स होंगे वो डिनोमिनेटर आएंगे। 4 पार्ट्स शेडेड है तो 4 न्यूमरेटर में आएगा। और अब 5 पार्ट्स सारे के सारे पार्ट्स शेडेड है तो 5/5। नेक्स्ट each of these equal strips are divided into 5 equal parts. Shaded portion of the first strip is less than the shaded portion of the second strip. अब आपको कंपेयर कैसे करना है। जो फर्स्ट पार्ट का स्ट्रिप है जिसके अंदर एक पार्ट ही शेड हो रखा है, 1 पार्ट ही शेड हो रखा है।
सेकंड वाले में 2 पार्ट शेड हो रखे हैं, तो आप कंपेयर कैसे करोगे? जो न्यूमरेटर होता है आपका वो स्मॉलर देन सेकंड पार्ट है, तो 1/5 इज स्मॉलर देन 2/5। सिमिलरली विथ थर्ड स्ट्रिप, सेकंड स्ट्रिप में आपकी क्या है 2/5, थर्ड स्ट्रिप में 3/5, तो 2/5 इज स्मॉलर देन 3/5 because in this 2 is smaller than 3. Similarly all shaded portion of the second strip is less than shaded portion of the third strip. Thus we can arrange this fraction as follows. अब अगर आपको इनको ऑर्डर्स में अरेंज करना हो तो कैसे करोगे? 1/5 is less than 2/5, 2/5 is less than 3/5 and so on. Therefore having same denominator, the fraction with greater numerator represent the greater fraction. जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हम कैसे कंपेयर करेंगे? जब उनका न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो ग्रेटर होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल हियर 6/7 इज ग्रेटर देन 5/7, 5/7 is greater than 4/7. We can arrange the like fraction in ascending or descending order by arranging their numerators in ascending or descending order. हम फ्रैक्शन को ascending और descending order में भी अरेंज कर सकते हैं. कैसे? Here 7/10, 4/10, 8/10, 3/10. अब हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा. इसमें सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा दिख रहा है? 3/10, तो 3/10, 4/10, 7/10, 8/10. नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा. बड़ा कौन सा है इसमें सबसे? 8/10, देन 7/10, 4/10 एंड 3/10. Now exercise. Fill in the blanks with smaller sign or greater than sign. So आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में 3/4 is greater than 1/4, 4/6 is smaller than 5/6, 4/7 is greater than 2/7. Write the following fraction in ascending order. आपको बता रखा है ascending order यानी छोटे से बड़ा. जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर को देखकर हमको ऑर्डर में अरेंज करना है. तो इसके अंदर क्या होगा? 4/9, 5/9, 7/9, 8/9. सिमिलरली आपको सब करने हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको ऐसे ही करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा. जो भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे पहला आएगा एंड सो ऑन. नेक्स्ट, राइट द फ्रैक्शन एंड पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन और इक्वल देन. जैसे आपने पहले क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शंस दे रखे थे, अब आपको फ्रैक्शन नहीं दे रखा है और पिक्चर दे रखा है. आपको उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन लिख के करेक्ट साइन को पुट करना है. शेडेड पार्ट को न्यूमरेटर और टोटल पार्ट्स एज अ डिनोमिनेटर. तो 2 आर शेडेड पार्ट्स, तो 2/3 और इधर आ जाएगा 1/3. तो 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ कोर्स. सेम हियर and you have to do all just like first one. Equivalent fraction. To get equivalent fractions, multiply the numerator and denominator by the same number like 1/2. 1/2 के इक्विवेलेंट हमको और भी फ्रैक्शन चाहिए, तो वो कैसे होंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी भी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे हमारे पास. जैसे इधर 1/2 दे रखा है, 1/2 दे रखा है फ्रैक्शन. अब हमें इसके और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने, तो कैसे करेंगे? 1/2 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 को भी 2 से और 2 को भी 2 से. तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो ये 1/2 के इक्विवेलेंट 2/4 आ गया. अब हमको 2/4 के और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? किसी भी सेम डिजिट से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. जैसे 3 से हियर इट इज़. जैसे 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? 3/6. ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया. तो क्या हो गया? ये 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 2/4, 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 3/6, सो ऑन. हम इसके और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं. एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. अभी तक तो हमने कंपेयर किया था
असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। अब हम फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, ऐड द न्यूमरेटर्स। और एडिशन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होते हैं उनका एडिशन होता है। फर्स्ट 2/8, 2 आर हियर शेडेड पार्ट एंड 8 आर ऑल पार्ट्स। तो 2/8 प्लस 3/8। अब इधर देखो आप, डिनोमिनेटर आपके सेम है, डिनोमिनेटर दोनों में 8 है, तो हम क्या करेंगे 8 को लिख लेंगे। और ऊपर जो न्यूमरेटर्स दे रखे हैं 2 + 3, उनका एडिशन करेंगे 2 + 3। तो 2 + 3 क्या हो जाता है 5, 5/8 इज़ द आंसर। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। 5/8 माइनस 2/8, डिनोमिनेटर आर सेम, तो डिनोमिनेटर हम ऐसे ही लिख देंगे नीचे जैसे एडिशन में लिखा था। उसके बाद न्यूमरेटर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। 5 - 2, तो क्या 5 - 2 क्या होता है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/8। नाउ सॉल्व इन योर बुक। राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द सेम। आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है, उसके आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। जैसे ये दे रखा है 1/3, अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालना है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया 2/6। 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6। हियर 1/5, 1/5 दे रखा है, तो इसके इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 2 = 2, 5 × 2 = 10। तो 1/5 इज इक्वलेंट टू 2/10। You have to do with yourself. Next questions. Now add the fractions. 1/4 plus 2/4. When denominator is same, we will took same denominator 4 or add the numerator. 1 plus 2 is 3. Here denominator ऐसा कैसा आ जाएगा 7, 3 plus 2 5, 5 plus 5, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर का एडिशन होगा 2 + 1 3। यह 8 ऐसा कैसा आ जाएगा और न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा 3 + 4 7। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर आपके सेम है तो आपको एज इट इज़ लेना है और न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 4 - 2 2, 7 - 5 2, 8 - 5 3 and so on. Now you have to do this book exercise with yourself.